Assalamu alaikum everyone. So this is the course Foundations of Readings for semester 5 और today I'm going to share the outline with you और outline के साथ ही हम इंशाल्लाह week 1 का first handout भी करेंगे. So let's move on with it. So the course is basically about how you teach reading and also to develop an understanding of what are the components of reading और इसमें जो है इन्वॉल्व प्रोसेसेस क्या होते हैं और इससे रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़ क्या होती हैं. सो बेसिकली द कोर्स आउटलाइन में यूनिट 1 में विल डू रीडिंग कॉन्सेप्ट्स, then unit 2 will deal with perspectives of reading, unit 3 development of literacy skills, unit 4 reading in different languages, unit 5 will deal with factors influencing reading development, unit 6 will be about developing early reading programs, Unit 7 will deal with motivation for learning, and the last unit, Unit 8, will deal with challenges in learning. तो इसका breakdown कुछ इस तरह से है that each unit will be completed in 2 weeks. So entire 16 weeks में आपके जो हैं 8 units complete हो जाएंगे. ठीक है? So what you will be able to do after you complete this course, you will be able to explain major concepts of reading and their significance for child development. You will be understanding the major milestones and processes in literacy development, then apply the knowledge about child development with special focus on oral language development to reading instruction processes by planning activities and combining these skills. You'll also relate theories and models for reading to the instructional methods. You will plan evidence-based motivational strategies for children to become effective readers. You will be able to summarize the range of reading and writing difficulties and list specific ways to address them at school, and also discuss national challenges in reading in Pakistan and plan concrete instructional strategies to address these challenges. So I have shared this outline with you. You can easily see that what are the sub-themes or subtopics within each unit. So the first unit is reading concepts, and in week 1 we are going to do definitions and concepts of reading, significance of reading, then child development or oral language development. In week 2 we'll be discussing child development, reading abilities, learning process with early grade learners, major milestones in the learning to read process, then reading strategies and skills needed to become effective readers. All of this will be covered in 2 weeks, and then the first unit will be completed. You can also see the learning outcomes for this unit in the handout given. So you know exactly what to look for when you are studying the handouts, when you're listening to the audios, and then you can ask questions based on whether you have personally met the learning outcomes or not. ठीक है? So इस यूनिट में essential questions जो आपने जहन में रखने हैं वो ये है, in what way is reading important for child development during early ages, and how do oral language skills affect reading abilities, and what strategies can be used to at each age to develop reading skills. So this is how we are going to go about the different handouts week-wise. You can see the complete outline below in the handout provided to get a complete understanding. So let's begin with handout 1.1.1, definitions or concepts of reading. You have already addressed and learned about literacy skills and how to teach literacy in semester 3. And you have a basic understanding of the reading process and literacy में reading and writing and the ability to communicate जो है वो सारी cover होती हैं. Digital natives की बात होती है. Literacy as a learning process आप लोगों को करवाया था. Literacy as a skill, या literacy as lifelong learning, या literacy as applied and situated. इन सब चीज़ों की हमने बात की थी. ये चीज़ें इन आइडियाज़ को रिविजिट करने के लिए आप अपने सेमेस्टर 3 के हैंडआउट्स और नोट्स को जो है वो थोड़ा सा दोबारा से रिफ्रेश कर लें अपने जहन में. So for many years, 3 basic definitions of reading have driven literacy programs in the United States. According to the first definition, learning to read means learning to pronounce words. Okay? According to the second definition, learning to read means learning to identify words and get their meaning. Then third definition is learning to read means learning to bring meaning to a text in order to get meaning from it.
आप ये देखेंगे कि स्टेप वाइज जो है ये डेफिनेशन थोड़ी सी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रही है। फर्स्ट डेफिनेशन में प्रोनाउंस वर्ड्स जो है वो उसने कहा है कि रीडिंग में क्या करते हैं, हम लर्निंग टू प्रोनाउंस वर्ड करते हैं, और चूंकि ओरल लैंग्वेज पहले ही आती है जो हम सही से प्रोनाउंस कर लेते हैं, तो हम उनका मतलब समझ के उसको समझ लेते हैं। दूसरी डेफिनेशन में क्या है कि आइडेंटिफाई वर्ड्स एंड गेट देयर मीनिंग। आप कोई भी लेटर्स सिंबल्स लिखे होते हैं, आप उसका वर्ड जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग। ये रिटन जो है ये लव्स DOG, इससे डॉग बना। अब डॉग के बारे में इस चीज की डिस्कशन हो रही है, तो आप उस तरह से यू मेक सेंस ऑफ द वर्ड्स। और थर्ड में उन्होंने कहा है कि पूरे टेक्स्ट का मीनिंग जो है आप समझने की कोशिश करते हैं आफ्टर रीडिंग इट। According, although these definitions reflect long-standing views of reading, current literacy research supports a more comprehensive definition of reading. This new definition includes all of the above definitions and places learning skills in the context of authentic reading and writing activities. Authentic reading and writing activities यानी कि जो real life की reading और writing की एक्टिविटीज हों, उनसे मिलती जुलती एक्टिविटीज होती है जिनकी जिंदगी में जरूरत पड़ती है, उस तरह से ये ऊपर वाली सारी डेफिनेशंस का इस्तेमाल करना और इनको उस डेफिनेशन में प्लेस कर दिया गया, तो इससे ये नई जो डेफिनेशन है वो ज्यादा ब्रॉड होगी। ठीक है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स बैलेंस रीडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल स्टूडेंट। बैलेंस रीडिंग इंस्ट्रक्शन के जो हर तरह के लर्निंग स्टाइल के स्टूडेंट्स को केटर करे, डिफरेंट रीडिंग के पर्पसेस को केटर करे, जिसके साथ आपकी रीडिंग की वजह से आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग भी स्ट्रेंथन हो। तो दैट इज बेसिकली बैलेंस्ड रीडिंग इंस्ट्रक्शन। विल स्टडी मोर अबाउट इट। In a balanced approach to literacy instruction, teachers integrate instruction with authentic reading, writing, and practical experience, so students learn how to use literacy strategies or skills and have opportunities to apply what they are learning. Real context में literacy strategies के साथ आप जब reading सिखाते हैं, ताकि फिर उसका अल्टीमेटली आपको एक तो कॉम्प्रिहेंशन भी डेवलप हो, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो, आपको उस टेक्स्ट की भी समझ आए, उस टेक्स्ट में आपने करना क्या है, डिफरेंट टास्क की भी समझ आए, और फिर अब आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करके उन टास्क को कंप्लीट करें। दिस इज द कंप्लीट बैलेंस्ड अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन। तो 10 कंपोनेंट्स हैं इसमें। क्या है? रीडिंग पे तवज्जो दी जाती है, फोनिक्स एंड अदर स्किल्स। फोनिक्स भी लिटरेसी स्किल्स में आप लोग कर चुके हैं कि जो आप इस्टेब्लिश करते हैं कि जी इस लेटर की साउंड ये है, वो एसोसिएशन करना बिटवीन द रिटन ग्राफीम एंड जो फोनीम आप बुलाते हैं उसको कहते हैं फोनिक्स। तो फोनिक्स, फोनीमिक अवेयरनेस, ये सारी स्किल्स, स्ट्रैटेजीज इन सबको लर्न करने की और अप्लाई करने की, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन, फिर लिटरेचर लैंग्वेज का क्या है, किस तरह का होता है, उससे आपकी थोड़ी वाकफियत और उसको तरीके से पढ़ना कि उसका मीनिंग आप समझ जाएं। फिर कंटेंट एरिया स्टडी को, खास कंटेंट एरिया आपने समझना हो तो उसमें फॉर इंस्टेंस बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है, कंटेंट नॉलेज आपको चाहिए, लेकिन यूज आप इंग्लिश कर रहे हैं, तो इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करके तो आपकी रीडिंग एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी इस्तेमाल होती है, पर कंटेंट कोई और होता है। ये इसकी भी कंपोनेंट है, ये भी बैलेंस्ड अप्रोच का। देन ओरल लैंग्वेज की डेवलपमेंट और टीचिंग, राइटिंग की एंड स्पेलिंग की। ओके, तो ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ अ बैलेंस्ड अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन। ओके, so let's move on to uh, some understandings about reading. Reading is a process of constructing meaning in which the reader connects information in the text to what he or she knows. ठीक है? Constructing meaning, आप सिर्फ पढ़ के उसको, सिर्फ लफ्जों को वो क्या करते हैं, पढ़ के छोड़ नहीं देते, आप अपने दिमाग में जो ऑलरेडी चीजें मौजूद हैं उनके साथ किसी ना किसी तरह से नई इंफॉर्मेशन जो आपने रीड की है उसको कनेक्ट करते हैं, और फिर ऑलरेडी जो नॉलेज वाली चीजें हैं उनमें ऐड करते हैं मजीद इंफॉर्मेशन। To construct meaning, the reader actively interacts with the text and the context. Context में क्या है, आपका टास्क और पर्पस फॉर द स्टडी क्या है। फॉर इंस्टेंस अगर आपसे कहें कि आपने ये टेक्स्ट रीड करके इसको पैराफ्रेज करना है, तो फिर आप उसके की पॉइंट्स को जहन में रखेंगे, आपको पता होगा कि मैं इस टेक्स्ट को क्यों पढ़ रही हूँ। The reader uses a repertoire of strategies. काफी सारी strategies का इस्तेमाल किया जाता है to understand the information in the text and to connect it to what he or she already knows.
तो काफ़ी सारी आपके पास स्ट्रैटेजी होती है नई इन्फॉर्मेशन को आप समझने के लिए। क्या कर सकते हैं, आप अंडरलाइनिंग करते हैं, आप उसमें से वर्ड्स को सर्कल कर लेते हैं, आप पॉइंट्स बना लेते हैं ताकि वो पूरे टेक्स्ट की आपको अल्टीमेटली समझ आ जाए और आप इसके कनेक्शंस बना लें। ऑलरेडी जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस पर आप इसकी बेसिस बना के इसको नई इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लें। The reader is aware of his or her repertoire of strategies and is in control of how he or she uses those strategies to construct meaning. ठीक है, तो आपके पास कंट्रोल होता है, आप नोट टेकिंग कैसे करते हैं, आप नोट मेकिंग कैसे करते हैं, आप किस तरह से रीडिंग के डिफरेंट प्रोसेसेस को अप्लाई करके आप स्किमिंग कर सकते हैं, स्कैनिंग कर सकते हैं। तो आपने सब, आपका मकसद ये है कि जो भी आप रीडिंग में टेक्स्ट पढ़ें वो आपको अल्टीमेटली समझ आए। तो किस तरह से आप ये स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करते हैं, आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। द रीडर यूजेस द स्ट्रैटेजीज नॉट ओनली ड्यूरिंग बट बिफोर एंड आफ्टर द रीडिंग टास्क और रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। तो बिफोर क्या है, फॉर इंस्टेंस आपको टाइटल नजर आ गया, तस्वीरें नजर आ गई, बुक कवर नजर आ गया, आपने कोई अजम्पशन बना ली कि अच्छा फॉर इंस्टेंस एक किताब खरीदते हैं, आप वहाँ किताब दुकान पे खड़े होके तो नहीं ना पढ़ना शुरू हो जाते, आप उसका टाइटल देखते हैं, अंदर से कोई सैंपल देख लेते हैं, पीछे रिव्यू देख लेते हैं, तस्वीर उसकी देख लेते हैं, तो आप उसकी बेसिस पे कुछ अजम्पशंस रीडिंग के बारे में कायम कर लेते हैं। फिर ड्यूरिंग रीडिंग आपकी और एक्टिविटीज होती हैं, आप पूरे टेक्स्ट को पढ़ रहे होते हैं, एक चैप्टर की पिछले चैप्टर से भी लिंक बना रहे होते हैं और आपके जहन में अगले चैप्टर के बारे में कोई assumptions बन रही होती हैं। देन आफ्टर रीडिंग आप क्या करते हैं, आप जो सारा टेक्स्ट है उसका आप जिस तरह पूरा खुलासा जहन में तैयार करते हैं, देन रिटर्न भी, कभी आपको समरी लिखनी पड़ जाती है, कभी आपको उसमें से कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है उसको आंसर करना पड़ता है, तो फिर आप रिविजिट करते हैं दोबारा टेक्स्ट को। तो इस तरह की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं जो आप बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग रीडिंग इस्तेमाल करके अपनी रीडिंग की नॉलेज जो है वो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें ये भी हैं कि इट इज ऑल्सो नोन दैट when using a strategy the reader stops to reflect on what has been read। क्या पढ़ा आपने उसके बारे में सोचेंगे, think ahead to what will be read, आप कहेंगे अच्छा आगे देखते हैं क्या होता है, and knows when to resume reading। और फिर जब आपके जहन में हर चीज क्लियर हो जाए, आपको पता है पिछली समझ आ गई, अगले के बारे में जबशल आपके दिमाग में कायम हो गई, फिर आप दोबारा अंदर जो पॉज लेते हैं उसके बाद दोबारा पढ़ना शुरू कर देते हैं। While reading, the reader's prior knowledge and expertise constantly interact with the particular characteristics of the text. The purpose of context for reading helps readers construct meaning. तो आप जो है प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस जो भी, फॉर इंस्टेंस अभी मैं आपको लिटरेसी वाले जो है मॉड्यूल उसका रेफरेंस दे रही हूँ जो आपने सेमेस्टर 3 में पढ़ा था, उसमें से जो चीज़ें आपके जहन में मौजूद हैं, आपको जो उसका एक्सपीरियंस था, अब आप इस मॉड्यूल की चीज़ों को उसके साथ कनेक्शन कायम करेंगे और देखेंगे कि अच्छा वो पढ़ा था, ये है, ये किस तरह से दोनों चीज़ों का आपस में लिंक बनता है या किस तरह से मुझे क्लैरिटी आती है, तो वो फिर आप उस पर काम करते हैं। ठीक है, सो सम रीडिंग डेफिनेशंस इन्होंने यहाँ पे भी दी हैं। रीडिंग इज अ बेसिक लाइफ स्किल, इट इज अ कॉर्नरस्टोन फॉर द चाइल्ड सक्सेस इन स्कूल। हर चीज के लिए, हर कंटेंट के लिए रीडिंग तो करनी पड़ेगी, तो सक्सेस इन स्कूल इज कनेक्टेड टू रीडिंग एंड इंडीड थ्रू आउट लाइफ। अब लाइफ में भी यही है, रीडिंग क्या, आप आजकल की दुनिया में तो हर चीज आपने जाके फूड ऑर्डर करना है, आपको मेन्यू पढ़ना पड़ेगा, आपने लिफ्ट में सफर करना है, आपको डिजिटल उसका जो टर्मिनल, उसका वो जो पैनल है उसको देखना पड़ेगा, मैंने क्या प्रेस करना है, आपने मोबाइल पर टेक्स्ट करना है, आपको वो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टेक्स्ट सेंड कैसे करना है, ईमेल कैसे करनी है। तो थ्रू आउट आपकी लाइफ में आपको रीडिंग की जरूरत रहती है। विदाउट द एबिलिटी टू रीड वेल, opportunities for personal fulfillment and job success inevitably will be lost। आपके लिए जो फ्यूचर में आपकी पर्सनल सक्सेस है वो रीडिंग से कनेक्टेड है, सो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, okay, so skilled reading is constructive, learning to reason about written materials using knowledge from everyday life and from disciplined field of study। तो आप जब skilled reading करते हैं तो आप उसमें कोई ना कोई constructivism करते हैं, कोई ना कोई इसमें आप meaning construct करते हैं, there is a purpose to that reading या written material, और everyday knowledge को आप apply करते हैं, तो इसलिए उसको कहा गया कि ये constructive है। Then फिर स्किल रीडिंग इज फ्लुएंट। फ्लुएंट का क्या मतलब है कि ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक होती है, आपकी अटेंशन जो है बहुत ज्यादा एक एक लेटर को पे नहीं होती। फॉर इंस्टेंस अगर ये वर्ड, आपका नाम लिखा हुआ है, ये ऊपर यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्कैन्ड विद कैम स्कैनर, तो अब इसको आपको पढ़ने के लिए बहुत मेहनत है, आप जल्दी से इसको स्कैंड, और ये दरमियान वाले को आप ये थोड़ी पढ़ेंगे कि अच्छा WITH विद लिखा हुआ है, नहीं, आप बस विद करके कैम स्कैनर पे चले जाएंगे वर्ड पे, शायद ये आपके लिए वर्ड नया हो, इसको पढ़ते हुए आप जरा सी अटेंशन दें, ये वाला वर्ड आप ऑटोमेटिकली पढ़ लेंगे।
तो फ्लुएंसी का मतलब है कि आपकी रीडिंग जो है ऑटोमेटिक बन जाती है और आपकी अटेंशन कंटेंट की नॉलेज लेने के लिए फ्री हो जाती है। तो आपको एक स्किल रीडिंग डेवलप करनी चाहिए। फिर स्किल रीडिंग इज स्ट्रेटेजिक, यानी कंट्रोलिंग वंस रीडिंग इज इन रिलेशन टू वंस पर्पस। आपको पर्पस पता हो कि मैं इस टेक्स्ट को क्यों पढ़ना है, मैंने किस किस्म का इसमें से मटीरियल या जवाब निकालना है, तो आप उसको उसकी कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करेंगे। देन स्किल रीडिंग इज मोटिवेटेड, कि आप इतने मोटिवेटेड हो, मैंने आधे घंटे में फॉर इंस्टेंस एग्जाम का क्वेश्चन कोई हो जिसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज तो आप फिर उनसे कहें कि जी मुझे उनसे ना कहें, आपको पता होगा कि मैंने इतने टाइम में इसको कंप्लीट करके ये मैंने टास्क पूरा करना है, तो आप मोटिवेटेड फील करेंगे और आप उसमें से करेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। और फिर रीडिंग स्किल रीडिंग जो है लाइफ लॉन्ग परसूट है, ये एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है, इससे आपकी डेवलपमेंट भी होती है और आपकी बाकी सारी स्किल्स की रिफाइनमेंट भी होती है। ओके, सो लर्निंग टू रीड में क्या क्या चीज़ें होती हैं शामिल, अब हम इसकी थोड़ी सी बात करेंगे। ओके, सो लर्निंग टू रीड, reading is making meaning from print. It requires that we identify the words in print, a process called word recognition, यानी जो word लिखा हो हम उसको पढ़ें, pronounce करें और फिर हम उसका meaning समझ लें। इसको कहते हैं word recognition, identify, यानी identify करें कि ये कौन सा वाला word लिखा हुआ है। Then construct and understand, तो जिसको अब उससे comprehension हम develop करें। ठीक है, देन कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाइंग वर्ड्स एंड मेकिंग मीनिंग सो दैट रीडिंग इज ऑटोमेटिक एंड एक्यूरेट। फिर हम साथ साथ पढ़ते जाएं, साथ साथ उनका मतलब हमें समझ आ जाए, तो जिसको इसको कहते हैं फ्लुएंसी डेवलपमेंट, कि हमारा ये जो प्रोसेस है कि हम वर्ड को आइडेंटिफाई करें और उसका मतलब अंडरस्टैंड कर लें, ये प्रोसेस हमारे लिए एक्यूरेट भी हो, ऑटोमेटिक भी हो, यानी हमारी इसमें फ्लुएंसी डेवलप हो, तो तब हम स्किल्ड रीडर। Sometimes you can make meaning from print without being able to identify all the words. अब हम जब जैसे जैसे हमारी नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज बढ़ जाती है ना, हम टेक्स्ट को वर्ड्स को ये रिकग्नाइज करना शुरू हो जाते हैं कि ये वर्ड अगरचे नया भी है, लेकिन क्या यहाँ पे नाउन है या वर्ब है या किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हमें उस लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में बैठा होता है, हमें उसकी ग्रामर का थोड़ा समझ आई होती है, हमें ये पता होता है कि अगर हमने कोई जुमला बनाना है तो कौन सा वर्ड कहाँ रखेंगे। ठीक है, तो जिस तरह उन्होंने कहा है कि रिमेंबर द लास्ट टाइम यू गॉट अ नोट इन मेसिंग हैंड राइटिंग, गंदी हैंड राइटिंग में भी हो लेकिन फिर भी यू स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। ठीक है, आप हालांकि आपको सारे वर्ड्स के स्पेलिंग सारे नहीं भी नजर आए, फिर भी आप एक अंदाजा लगा के आपने मतलब समझ लिया। तो इसमें उन्होंने जिस तरह कहा है, समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई वर्ड्स विदाउट बीइंग एबल टू कंस्ट्रक्ट मच मीनिंग फ्रॉम देम। जैसे ये एग्जाम्पल लुई कैरल की पोएम है, लुइस कैरल की Jabberwocky. तो इसका क्या है? "'Twas brilling and slithy toffs did gyre and gimble in the wave. All mimsy were the borogoves and the mom rats outgrabe." अब ये मैं वर्ड्स नहीं भी समझ सकती, लेकिन मैंने उनको पढ़ लिया, प्रोनाउंस कर लिया। क्या कहना चाहिए, ये नहीं, थोड़ा सा मुझे उसको प्रोनाउंस करने में मुश्किल हुआ, लेकिन ये कि मुझे ये थोड़ी समझ आ गई। इट वाज ट्रिलिंग, ट्रिलिग, यानी इस तरह से कोई वर्ड होगा तो मे बी जिस तरह कहें जी इट वाज रेनिंग, तो उस तरह का कोई वर्ड है ये। डिड गायर एंड गिम्बल इन द वेव, अब ये क्या है? गायर एंड गिम्बल, ये कोई नाउन नाउन हो सकते हैं, और इन द वेव कोई ये प्लेस हो सकती है। तो कोई थोड़ी हम अजम्पशन रीडिंग करते करते जो है वो डेवलप करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? सो दिस वाज बेसिकली हैंड आउट 1.1.1. You can give it a complete reading on your own, and we can discuss whatever you don't comprehend about it in the WhatsApp groups and also in our Zoom meeting. Okay, so this was a discussion of the definition and concepts of reading. So take care everyone, and you can ask me questions later.